آج کا دن رجب کا مہینہ متبرک اور فضیلت والا مہینہ، اس میں شب معراج کی شب والا دن، آج کا دن سید شاہ ابدال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے سندل مالکہ عرس شریف کا دن ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی عقیدت مندوں کے لیے ایسا دن خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوتا ہے اور ملتا ہے۔ آج ہم اس دن کو پائے ہیں، ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں۔ جہاں تک بزرگان دین کا تعلق ہے، اور اس میں بطور خاص سید شاہ ابدال حسینی رحمۃ اللہ علیہ یہ اللہ والے ہیں۔ اللہ والوں بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کی حکمت اور مصلحت کیا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت تھی کہ یہ بزرگان دین اپنا وطن چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر تبلیغ اسلام میں، اشاعت اسلام میں پوری طریقے سے منہمک ہو کر آج جو کام کرے ہیں، اور ہندوستان میں مسلمانوں کا اور اسلام کا جو بول بالا ہے، آج انہی کی بدولت ہے، ان کی انتھک کوشش ہے اور ان کی صدق دل اور نیک نیتی کا ثبوت ہے۔ جہاں تک آج کے دن کی بات ہے، حضرت سید شاہ ابدال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑے ولی ہیں، اور انہوں نے بہت سے موقعوں پر اپنے کرامات کا ثبوت دیا ہے۔ سب سے پہلا ثبوت تو یہ ہے کہ انہوں نے، ان کے نام سے ملیدہ بنایا گیا تھا، اور اس ملیدے کو سب لوگ درگاہ شریف میں جو جمع ہوئے تھے وہ کھائے تھے۔ وہ ملیدہ تھا اور وہ تبرک تھا، اور وہ تبرک کا کھانا بطور خاص تھا، لیکن تبرک کے کھانے کے بعد جس طریقے سے حالات پیدا ہوئے، وہ رائچور کی سائنس کی تاریخ میں اور ڈاکٹروں کے پاس ایک ثبوت ہے کہ وہ جو زہر تھا کھانے میں جو ملا ہوا، اس سے کسی کا جانی نقصان نہیں ہوا، صرف الٹیاں ہوئے اور ان کے ساتھ ڈیسنٹری ہوئی، آج بھی یعنی کہ زندہ ہیں۔ یہ 25 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ ہمارے بزرگ سید شاہ ابدال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کا ایک نتیجہ ہے، ایک ثبوت ہے۔ اسی طریقے سے بارش کے دنوں میں پیچھے کے ان کے سرہانے ایک جو روڈ گزرتی ہے، وہ روڈ پر الیکٹرک وائر جو مین وائر سپلائی وائر کہلاتا ہے، سپلائی لائن والا وائر کہلاتا ہے، بارش کے زمانے میں گرا تھا۔ جب بارش کے زمانے میں بارش کو اور الیکٹریسٹی کو بہت قریب کی دوستی ہوتی ہے، ایسے میں نہ کسی کا جانی نقصان ہوا اور نہ کسی کو جانی طور پہ کا نقصان کا بھگتنا پڑا۔ لوگ پھرتے رہے، بارش ہوتی رہی، کرنٹ زمین پر پھیلتا رہا، لیکن کوئی جانی نقصان نہ۔ یہ جانی نقصان نہیں ہونے کا بیان ثبوت یہ ہے کہ یہ سرکار کی کرامت ہے۔ تو لوگ یہاں پر اہتمام کرتے ہیں قوالی کا اہتمام پچھلے کچھ دنوں سے چلا آ رہا ہے۔ قوالی کے اہتمام کرنے والوں کے لیے میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح سے نیک توفیق دے حضور حضرت کی خدمت کرنے کے لیے، اور جو نوجوان بچے سرکار کے نام پر جو غریب لوگوں کو کھانے کا اہتمام کیے ہیں، ان کو اس کا اجر عظیم پہنچے، اور اسی طریقے سے ان کو نیک توفیق ہو۔ اور ایک کرامت ہمارے بزرگ کی یہ ہے کہ جب قوالی ہو رہی تھی، قوالی عین رات میں پہنچ چکی تھی،
बीच रात का वक्त था, 2 बजे के वक्त ख्वाल अपने अंदाज में गा रहे थे, लोग सुन रहे थे। जिस झाड़ के नीचे ख्वाली हो रही थी वो नीम का झाड़ है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ कड़वा होता है। नीम के झाड़ से जब शक्कर गिरने लगी तो कड़वे झाड़ से मीठी चीज़ गिरने लगी तो लोग हैरान रह गए। ये भी एक करामत है। ऐसे बहुत से करामतें हैं, ये अल्लाह वालों की करामतें हैं। ये अगर गौर किया जाए तो देखा जाए तो आज से 1000 साल पहले या 800 साल पहले हिकमत और मसलहत के ज़ाविया निगाह से कि ये जो आज यहाँ पर मुसलमानों की चहल पहल है, ये जो इलाक़ा है या ये जो गली है, ये जो सरकार जहाँ पर क़याम पजीर हैं, ये किसी ज़माने में यहाँ पर है क्या कोई मुस्लिम नहीं बसता था। ये हुजूर की आमद है, ये हुजूर का क़याम है। ये हुजूर की क़याम की वजह से आज मुस्लिम बस्ती इतनी बड़ी है और मुसलमान इतनी तादाद में नज़र आ रहे हैं। बग़ैर जायज़ा लिया जाए तो नौरंग दरवाज़े से लेकर सरकार के रोज़े तक और इससे अतराफ़ व अकनाफ़ में जो मुसलमान बस्ती बसी हुई है, ये सरकार का ही एहसान अज़ीम है। भी गैर मुस्लिम हैं वो भी इस औलिया अल्लाह दरगाह पे आते हैं, हाजिर देते हैं। वो भी बहुत एतक़ाद और मन्नतें मांगते हैं। यहाँ से बहुत कुछ पाते हैं वो लोग, जितने भी गैर मुस्लिम हैं। और यहाँ पे हर चीज़ से अल्लाह ताला इनके तुफ़ैल से हर वो बुराई, हर वो फसाद रायचूर में नहीं होता। यहाँ पे ज़ात पात की कोई तमीज़ नहीं है। ये औलिया अल्लाह जो है हर वो चीज़ के निगरानकार हैं। इस मौके से इस आज उर्स के मामले में आज हम लोग सभी उर्स के तुफ़ैल से आप लोगों को सबको मुबारकबाद देते हैं। A1 TV के लिए हमारे ज़हीर पाशा साहब बहुत मेहनत करते हैं और हमारे इंडियन बादशाह साहब, ये लोग इनका भी शुक्र अदा करते हैं। और ख़ास तौर पर ये A1 TV के हम लोग शुक्रगुजार हैं और दामे दुर में सुख में लोग पेश नज़र रहते हैं हर हमेशा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निगाहें औलिया में वो तासीर देखी, बदलते हुए हमने हज़ारों की तकदीर देखी। आज वो मुक़द्दस मुबारक दिन है। हज़रत सैयद शाह अब्दाल हुसैनी बाबा क़िबला रहमतुल्लाह अलैह का आज संदल मुबारक और आज खुसूसी जो है 26 तारीख़ है और शब महराज का दिन है। और मैं खुसूसन आस्थान आलिया के नौजवान कमेटी को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि तमाम नौजवान मिलकर जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक एकताई के साथ जो है हज़रत के बारगाह में जो हिस्सा लेकर जो संदल माली का अंजाम और संदल माली को खिदमत अंजाम देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी हम क्या तारीफ़ करें। ये सब के सामने एक ऐसी मिसाल है कि ये अपने नामों को ज़ाहिर नहीं करते, लेकिन जब भी हज़रत का उर्स शरीफ आता है तो सब एक दिल होकर रहना यहाँ पर जो खिदमत अंजाम देते हैं। असल तो अल्लाह के वलियों के बारगाह में वही आता जो अल्लाह के वली उसको चाहते हैं। आज पीर के रोज़ 22 रजब अल-मुरज्जब बररात के मौके पर सैयद शाह अब्दाल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का संदल बड़ी शान व शौक़त से मनाया गया है। लोग अभी आ रहे हैं, काम का भी इंतज़ाम किया गया है। जगह की किल्लत होने की वजह से आप लोगों को तकलीफ़ हो रही होगी, लिहाजा आइंदा तकलीफ़ ना हो, ऐसे कुछ असबाब पैदा हो। अल्लाह का एहसान करीम है कि जश्न उर्स शरीफ में हम सब शामिल हुए हैं। ये अल्लाह का सबसे बड़ा काम है कि एक अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिर रहना गोया हम अपनी ग़ुलामी का इजहार करने के बराबर है, जो आप शहर रायचूर के लिए हम खुश नसीब हैं। मैं अपने बचपन से इस संदल में, इस उर्स में शिरकत करता हूँ। यहाँ पर बिला मज़ो मिल्लत हर कौम के लोग आते हैं और आपका फ़ैज़ हासिल करते हैं। अब्दाल के लग़वी और लफ्ज़ी मानी ये है वली कामिल, यानी कि मुकम्मिल वली, कामिल वली। और आप तारीख़ बीजापुर में आपका ज़िक्र है और रायचूर की जितनी औलिया है उन औलिया में आपका ज़िक्र आता है। और यहाँ पर आम व ख़ास बिरदा मज़हब व मिल्लत हर एक को आपका फैज़ पहुँचता है। हर एक इंसान यहाँ से, मैं तो देखा हूँ अपने तजुर्बे, अब बग़ैर फैज़ के नहीं जाता है। तमाम इंतज़ाम करते हैं यहाँ, यही लोग तमाम बड़े बड़े लोगों से जाकर हदिया और तंजा लेकर ये तमाम खाने और ताम ख़वाली का तमाम इंतज़ाम करते हैं। यहाँ पर हम किसी सरकारी मत से नहीं है, ये अपने ख़ुद का मान